एनसीईआरटी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.3 तक सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, 1.4 में 2 क्वेश्चन हैं, वो भी थ्योरेटिकल बेस हैं। ऐसी कोई नीड नहीं है उनको कराने के लिए। अगर आप लोग की डिमांड होगी, चॉइस होगी तो उसको मैं करा दूंगी, आप मुझे मैसेज करना। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज 1.4 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 में है, तो एक्सरसाइज 1.5 को हम कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने देखा, पीछे का सारा आप लोग वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग उससे देख करके सारे वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ओके, एक्सरसाइज 1.5 कैसे क्वेश्चन है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हमें इसमें सॉल्व करके और बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। हमें पता है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। ओके, rational number are those number which can be written as in p by q form. Okay, and these type of number repeat themselves. Okay, and terminate, अपने आप ही ये terminate हो जाते हैं। Okay, और here q cannot be 0. These are the 3 to 4 points which we have to learn what is rational number. First one is rational number are those number which are written as in the form of p upon q, and those number are always repeats their values and always terminate, exit, and remainder comes here 0, and here in p upon q form q is not equals to 0. These number are known as rational number, and here irrational number just opposite at rational number. Irrational number are those number which cannot written as in p by q form. Those number are not repeat and not terminate. Okay, so here decimal, non-terminating and non-repeating. Okay, and cannot be written as a form of p upon q. These are the 3 property of irrational number, and these are the 3 to 4 property of rational number, by which when we solve our question which are given in my exercise 1.4, here we see which number which question has the property of rational number and which question has the property of irrational number. We check it, solve it. When we found the property is similar to rational number, we declare that solution that is a rational number, and which property are not similar to the rational number, we will declare those question in irrational number. Now move to the question part. First question we will see here. Here is given 2 minus का under root 5. 2 minus का under root 5. When we solve this, okay, 2 minus का under root 5. First question is this. When we solve it, first we see this, here is rational number and here is irrational number. Firstly, we solve irrational number and we take the value of root 5, and to solving the root 5 by the long division method, we will say here the value will come 2.236 and dash. Here to solve the long division method. And what is long division method? This type of division is long method where the value comes in the pair.
Okay, in point, when we give in the point and the value is here come in pairs, and always gives value, division value, multiplication value always in pairs. Like here is given value 5. When we solve it in the long division method, we take the value of 2 and we cannot solve it 2 1 ja 2 or 2 3 ja 6. Okay, we always same which number will be here, those number will also be here. Okay, 2 5 2 2 ja 4. Okay, 5 minus का 4 1. 2 cannot divide 1. Here will point, and the point will here will not be increase 1 0, always in pair in long division method. ये है long division method. In long division method, always value given here in pair. When we put here point, the 2 0 will be come here, and here also 2 first step in 2, here will be 2 will be added in second step, 2 2 ja 4, and we will solve 4 divided to 100. When we divide 4 to 100, which one number will be come here and also be come here. So 4 2 ja and 4 2 ja multiply by 2, this will come here 2 2 ja 4, 2 2 ja 4 and 2 4 ja 8. It will be 84. 10 में से 4 गया 6 and 9 में से 8 गया 1. Here 16 and here value is 42. We will again here we will take in pair value. This will be 1600 and this 4 as it is come here. Here is 2 will also be double 4. Okay, now here value will come only which will come here. Okay, if we take either here 3, this 3 will come also here, and we will multiply is this 3. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12 का 2 carry 1, 3 ja 4 ja 12, 12 और 1 13. Now divide is 1600 to 1329. 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2. Now again 2 0 will come here. Okay, this is value is 27,100. Here 4 will also as it is, 4 will also as it is. This 3 will be again added. 3 plus 3, this will be 6. Now the value which come here always, this will be here, multiply by again this number, and this is that this value will be 6. Here 6, here multiply by 6 and value this. So the answer is root 5 is in long division method 2.236 and dash dash. Okay, now subtract 2 minus का 2 into 2 3 6 and dash dash dash. Okay, now the rule is, what is rule? Rule is this: when we divided rational number, when we subtract, sorry, not divided, subtract. Question is here only subtract. When we subtract rational number into irrational number, result will always irrational. Result will always irrational. In see here, this is plus 2, this is minus 2, this will be cut, and the value will here remaining 2.36 dash dash dash. Okay, so rational number when divided irrational, it will be irrational. You don't need to solve it if you remember this rule. अगर आपको ये रूल याद है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की, लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकालने की. आपने देखा, यू सी हियर फर्स्ट नंबर इज रेशनल एंड सेकंड नंबर इज इरेशनल. Directly switch to the rule and remember it, when we subtract rational number into irrational number, result will also be irrational. Okay, now the second question is 3 plus under root 3. Second question is 3 plus का under root 23 minus का under root 23. Now solve it. 3 plus का 23 plus का 23 minus का 23 cut, and answer will be here 3. 3 is rational number. 3 is rational number. Here this result will irrational. Now this
2 upon root 7, 2 into root 7 upon 7 into root 7. This root 7 will be cut. Now the answer will be here 2 upon 7. Okay. Answer will be here 2 upon 7. And 2 upon 7 in the form is P by Q. And P by Q the always in which type? रेशनल नंबर टाइप. रेशनल नंबर ही P by Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. एंड हियर इज 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन रूट 2. ठीक है. 1 अपॉन रूट 2 इज एन, जब इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज हेयर इज अ डिनोमिनेटर. इन डिनोमिनेटर हेयर इज इरेशनल नंबर. तो जब डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर है तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरेशनल. Okay, this is also a irrational number because pi is famous value to taking the point number. Okay, in which 2 pi is a irrational number. Okay, now next move, simplify each of the following expression. इन एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करेंगे? नेक्स्ट मूव करते हैं पेज पे. कैसे सिंप्लीफाई करना है? 3 प्लस का रूट 3 एंड 2 प्लस का रूट 2. अब यहाँ पर बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है. जब नहीं होता है तो वहाँ पर इनटू का साइन होता है. अब ये वैल्यू हो गई हमारी 3 प्लस का रूट 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का रूट 2. किस तरीके से करेंगे? 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करेंगे. पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी रूट 2 से. कैसे होगा ये? 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से, तो ये हो गया 3 रूट 2. अब नाउ मूव टू द सेकेंड टर्म. हेयर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई and 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2. ओके, बीच में प्लस का सिंबल. 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस विल बी 2 रूट 3 एंड दिस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2. रूट 3 और मल्टीप्लाई रूट 2 यानी कि रूट 3 एंड मल्टीप्लाई रूट 2. हेयर इज 3 इन रूट, हेयर इज 2 इन रूट. बोथ वैल्यू आर डिफरेंट. अगर ये क्वेश्चन होता सिमिलर सेम रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 रूट से रूट कैंसिल हो जाता, आंसर आता केवल 3. इफ़ द वैल्यू इज डिफरेंट, वन पार्ट इज रूट 3 एंड अनदर पार्ट इज रूट 2, हेयर द मल्टीप्लाई विल इन डिजिट्स एंड द वैल्यू और रिजल्ट इन टू द रूट पार्ट. तो हेयर इज 3, हेयर इज रूट 2, दिस विल बी रूट 6. ओके, हेयर द वैल्यू इज 6 प्लस का 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3 प्लस का रूट 6. इससे ज़्यादा ये और सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. यही इसका आंसर है. ना ही इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, ना ही इसमें कोई एडिशन हो रहा है, अब ना ही अब इसमें कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है. अगर 6 को रूट 6 से हम एडिशन करें भी तो 6 प्लस का रूट 6 ही आएगा. ओके, अब जितना सिंप्लीफाई हो गया हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 प्लस का रूट 3, 3 माइनस का रूट 3, सबके बीच में ऑपरेटर ही लगा है. कैसे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. 3 प्लस का रूट 3 एंड 3 माइनस का रूट 3, ये हमारा क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे हम? वही सेम मेथड, 3 की मल्टीप्लाई 3 से एंड 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से. पहले एक नंबर उठाते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ हर एलिमेंट से 1 बाई 1 उसकी मल्टीप्लाई होगी. 3 मल्टीप्लाई 3 9, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये होगा 3 रूट 3. ठीक है, इधर प्लस ये होगा प्लस का 3 रूट 3. ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है. रूट 3 सेम वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगी 3. अब ये देखिए, एक बंदा प्लस में है एक बंदा माइनस में है, हमेशा कॉन्कैटिनेशन होगा. ओके, रूट 3
प्लस का, √3 माइनस का कट गया, 9 माइनस का 3 आंसर आया 6, आंसर 6 आया, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ओके, इस तरीके से हमको पहचानना है कि हमारा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितना सिंपल हो रहा है और कैसे उसे मुझे करना है। अब जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप इनको सॉल्व करना। आपको कोई भी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सेम इसकी तरह है आपको सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। Now next question is recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, say d, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर पाई को डिफाइन किया गया है कि वो रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल का और इसका डायमीटर डी कहलाता है। सही बात है, ठीक है। फार्मूला लगाया है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसकी वजह से यहाँ पे कंट्राडिक्शन होता है कि पाई एक इरेशनल है। हाउ विल यू सॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दिस, पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference, that is called C of a circle to its diameter d, that is pi equals to c upon d. This look like a fraction but pi is a irrational number. pi क्या है? हमारा irrational number है। ठीक है, when we say pi equals to c upon d, it only means pi is the value you get when you divide the circumference of a circle by its diameter. It does not mean that C and D are integers or rational numbers. Pi as not be expressed as p by q with integers p and q. pi equals to c upon d.
ओके कह रहा है ये कि पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट डायमीटर डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, हाउ वुड यू डिफाइन या हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट कंट्राडिक्शन कि पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सी अपॉन डी को लिखा गया है। सी अपॉन डी जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो ये हमारा एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। ओके ये हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है तो आप इसको सी अपॉन डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ कंट्राडिक्शन इतना ही है। तो हमने सी अपॉन डी लिखा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। वही यहाँ पर एक्सप्लेन है कि पाई इज द वैल्यू यू गेट व्हेन यू डिवाइड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। यहाँ पाई वो वैल्यू है जब हम सरकमफ्रेंस को सर्किल से डिवाइड करते हैं, है ना, बाई इट्स डायमीटर, सर्किल के डायमीटर से, यानी कि सर्किल के सरकमफ्रेंस को सर्किल के डायमीटर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इट डज नॉट मीन दैट सी एंड डी आर इंटीजर्स। ओके understand it and remember it, when we divide circumference by the circle diameter it doesn't mean कि C and D are integers or a rational number. Pi is not be expressed as P by Q with integers. Okay, P and Q, it is only the value of dividation. Pi getting the value circumference and diameter. Okay, तो our ratio, now next, C and D are length. C and D are lengths, not integers. C and D जो है वो एक सर्किल की लेंथ है, ये इंटीजर्स नहीं है। ओके their ratio just happens to be the same for every circle, and that value is pi. Okay, a ratio of two real numbers can be irrational. रेशियो ऑफ टू रियल नंबर्स का मे बी या कैन बी इरेशनल हो सकता है। सो वी रिटन एज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इट इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, it is ratio of measurements. There is no contradiction. Okay, there is no contradiction. यही प्रूफ करना था हमको कि C अपॉन D जो है वो एक डिजिट्स हैं, वो लेंथ है जो हमारी सर्किल के अंदर यूज़ हुई है। ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। और ये इट इज़ रेशियो ऑफ मेज़रमेंट, ये केवल मेज़रमेंट का ही रेशियो है, समझ गए। तो यहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। अब जैसे डायमीटर ऑफ ए सर्किल निकाल के भी देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से पकड़ के तो हम सर्कल बनाएंगे ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी आर होती है। ओके, और जब इस डिस्टेंस को पूरा फुल कर दिया जाता है तब ये इसका डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो डायमीटर डी इक्वल्स टू 2r। ओके, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, वो उसका फार्मूला होता है 2πr। diameter of a circle, diameter of a circle longest straight line है, किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन है।
लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन है और ये पासिस थ्रू सेंटर, इट इज पासिस थ्रू सेंटर, touches both sides of center, touches both sides of circles. Okay, circumference of a circle means क्या हुआ, मीन्स डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, सर्किल के अराउंड जो भी डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल. तो मीन्स डिस्टेंस अराउंड द सर्किल लाइक c = 2 pi r, also written as pi d. कैसे पाई डी, क्योंकि 2r किसके इक्वल है, d के, d = 2r, यानी डायमीटर कितना है हमारा 2r है. अब यहाँ पर हम 2r = c × पाई इंटू c = पाई इंटू अगर हम 2r करें तो यहाँ पे 2r = d है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई d. ओके, c = पाई d, यहीं से ही सॉल्व होकर के आया है d पाई यहीं से ही सॉल्व होकर के आया है पाई = c/d. ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. मैंने देखिए आपको कितना डीपली समझा दिया, डायमीटर भी समझा दिया, मैंने आपको सर्कल भी समझा दिया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी समझा दिया और रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड सर्किल्स का भी समझा दिया. और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये p/q के फॉर्म में c/d की वैल्यू आ गई है. यही हमारा कंट्राडिक्शन था, ये हमने आपको समझा दिया है. ओके, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की. अब आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इसको बार बार देखना, अगर कहीं पर भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना. और हाँ, अगर किसी को पर्सनली पूरे नोट्स चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में मैसेज करें, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना और काफ़ी अच्छे से समझना, मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है. Now let's move to the next question. Represent √9.3 on the number line. नंबर लाइन पे √9.3 को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, आइए करते हैं. क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 9.3 on the number line. तो 9.3 = 9.333333, ये कुछ समथिंग ऐसा है, केवल 9.3 नहीं है. इसका मतलब हुआ, यानी कि इट मीन्स 9 प्लस आर रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट which is 0.3333 and dash. So lies number between 9 and 10 on the number line. यानी कि जो नंबर होगा वो लाइज करेगा बिटवीन 9 and 10 on the number line. On the number line. Here 9.3 = 9 plus 0.3333 and dash. Okay, and 0.333 and 3 dash equals to, ये वैल्यू होती है 1/3 की. कैसे होती है 1/3 की, इसको सॉल्व करके दिखाएं. 9.333 को हम लिख सकते हैं 9.3 बार.
ओके, 9.3 बार को लिख सकते हैं 9 प्लस का 1/3, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 3 पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ये हो गया 9 3 जा 27 प्लस 1 28/3। ओके, नाउ लेट x इक्वल्स टू 0.3333 डैश डैश डैश। ओके, now multiply by, here repeating only one number, multiply by 10, then 10x equals to 3.3333. This is equation 1 and this is equation 2. Now minus 2 equation 2 minus का equation 1. This will be 9x equals to 3, x equals to 3/9 यानी कि 1/3. तो 0.3333 that equals to 1/3. Now here is value 1/3. So 9 प्लस का, यानी कि ये 9.3 कोई नंबर लाइन पे शो करना है ना, तो 9 प्लस 1/3 will be 9.3333 डैश डैश डैश। ओके, तो 9 प्लस का 2/3 होगा हमारा 9.6666 डैश डैश डैश। तो 9 प्लस का 3/3 होगा इक्वल्स टू 9.3 का डबल, यानी कि 3 से 3 कट हो गया तो यहाँ पे हो गया 1। 9 प्लस का 1, दिस विल बी 10। ओके, तो व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर लाइन, दिस नंबर विल बी लाइज ओनली 9 and 10। Okay, so these are the methods to solve this type of question. Okay, you see it properly and do it again and again. When you do it again, math never will come only reading. It will come when you practice it more and more. तो मैंने समझा दिया आपको बहुत ही बेसिक टू एडवांस, एक एक पॉइंट लेके डिटेल से। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी उसको डिटेल के साथ कर रहे हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है, यानी कि सॉल्व करना है। अब ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1/7। जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वहाँ पे रूट को हटाना रहता है, और रूट को हटाने के लिए जो वैल्यू दी है उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 इंटू √7, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू √7, ये हो जाएगा √7 और √7, दिस विल बी 7। नाउ द आंसर इज ओनली हियर। ओके, अगेन व्हेन वी सॉल्व इट, दिस नंबर बी, दिस इज 1/√7 माइनस का √6। आप फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के नंबर से, दिस विल बी √7। हेयर द साइन विल चेंज, हेयर इज माइनस, हेयर विल बी प्लस। इफ देयर वाज ओनली प्लस, हेयर विल बी माइनस। ओके, तो 7 प्लस का √6, हेयर इज 7 प्लस का √6। नाउ सॉल्व इट, ऊपर this will be 7 plus का √6. now this when we solve it, √7, this will be 7 plus it will be √7, √6 it will be √42 minus √6, it will also be √42 और 42, और माइनस का √6 प्लस का प्लस माइनस √6 का मीन्स 6 ओनली, प्लस का 42 माइनस का 42 कट, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो आंसर ओनली हमारा आया √7 प्लस का √6। हो गया ना रेशनलाइज। डिनोमिनेटर में तो नहीं रहेगी ना रूट में वैल्यू, ना ऊपर रहेगी डिनोमिनेटर में। तो ये पैटर्न से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। अब एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ हमारी आज एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे 1.6 को कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, अब कल हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसका मैंने एक एक पॉइंट, एक एक एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को डीपली से किया है, समझाया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितने अच्छे से इसको कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछना और कमेंट करना। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। मैथ विद जू फिशर चैनल पे एक
एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चंस आंसर की पढ़िए और नंबर सिस्टम चैप्टर भी पढ़ा है। ओके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसको अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, प्यार देते रहें। और हाँ, लाइक करना, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। क्या पता आपके शेयर से किस बच्चे की हेल्प हो जाए। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, शायद ही किसी वीडियो में आपको इतने डिटेल से पढ़ने को मिले और आगे भी आपको यूं ही पढ़ने का मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।